یہ جو نقل و حمل ہوتی ہے، یہ نقل و حمل کے کون کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے نقل و حمل انجام دی جاتی ہے؟ نا سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں ہم، تو نقل و حمل کو ہم نے دو باتیں تو پہلے یاد رکھ لیجیے آپ، جو بہت بیسک ہے، بنیاد ہے، جس کو ہم بعد میں اور آگے جب ہم سیل دا یونٹ آف لائف پڑھیں گے، جب ہم وہاں پر پلازما میمبرین پڑھیں گے، جب ہم وہاں پر پلازما جھلی پڑھیں گے، اس وقت بھی ہم وہاں پر اس کو ریپیٹ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو نقل و حمل ہے، وہ نقل و حمل دو طرح کی ہے۔ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک ٹرانسپورٹیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسیو، اس کو کہا جاتا ہے مجہول۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ مجہول نقل و حمل۔ اور ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایکٹیو، جس کو کہا جاتا ہے فعال، فعال نقل و حمل۔ یہ جو مجہول ہے نا، پیسیو ٹرانسپورٹ، اس کے اندر ایک ٹائپ ہے جس کو آپ کہنے والے ہیں ڈیفیوژن، یعنی نفوذ، جس کو آپ کیا کہنے والے ہیں؟ ڈیفیوژن، جس کو آپ کہنے والے ہیں نفوذ۔ نا پیسیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر توانائی کی ضرورت نہ ہو، جہاں پر توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب توانائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو توانائی کو عام طور پہ جب ہم بایولوجی میں بات کرتے ہیں تو ہم اکثر اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اے ٹی پی۔ وہ کیا ہے؟ اے ٹی پی۔ تو یہاں پر اے ٹی پی کی ضرورت نہیں ہوتی، تب ہم اس کو کہتے ہیں مجہول پیسیو۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور اگر آپ کو اس میں ایکٹیو ریسپانس نہیں دینا ہے تو آپ اس کو بولیں گے پیسیو۔ جیسا ابھی آپ لیکچر میں بیٹھے، جب میں بار بار پوچھتا ہوں تو اگر آپ تھم دے رہے ہیں، جی سر بول رہے ہیں، یس سر بول رہے ہیں، نو سر بول رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ایکٹیو ہیں، آپ کا انرجی ڈال رہے ہیں، آپ حرکت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے صرف دیکھ رہے ہیں تو وہ کون ہو گئے؟ وہ ہو گئے پیسیو لسنر۔ ان کو اپنے کام کرنے کے لیے انرجی انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھم دے، نو سر بولے، ہاں سر بولے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ویسے ہی یہاں پر ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، نقل و حمل ہوتی ہے۔ اس نقل و حمل میں اگر کوئی انرجی کی نیڈ نہ ہو تب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول نقل و حمل، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسیو ٹرانسپورٹ۔ اس کا ایک میکینزم کون ہے؟ نفوذ۔ ٹھیک ہے، تو ہم نفوذ کی بات کر رہے ہیں۔ تو نفوذ کے ذریعے جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غیر فعال عمل۔ کیسا ہوگا وہ؟ غیر فعال، کیونکہ جب ایکٹیو عمل ہوگا تو اس کے لیے انرجی لگتی ہے، تو اسی لیے جو پیسیو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس میں جو ڈیفیوژن ہوتا ہے، اس ڈیفیوژن کو دوسرے لفظ میں کیا بولا جاتا ہے؟ غیر فعال۔ تو اب اگر اس عمل کو اگر فعال بول رہے ہیں تو اس کو مجہول بولنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ غیر فعال۔ تو یہ جو عمل ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ غیر فعال عمل ہوتا ہے۔ پھر یہ حرکت کے لیے ایک حصے سے دوسرے حصے تک یا ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک کم فاصلے تک، مثلا گپتی کی خلوی جگہوں سے باہر کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جو اندر کی خلیے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے؟ باہر کی طرف ان کا کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ جو بات ہم نے کہا کہ یہاں توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اسی کو دوسرے الفاظ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ توانائی یہاں پر خرچ نہیں ہوتی۔ پھر نفوذ کے دوران سالمات بے ترتیب انداز میں حرکت کرتے ہیں، یعنی ان کی کوئی اسپیسیفک ڈائریکشن نہیں ہوگی، نتیجتاً مادے زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی جانب کیا کرتے ہیں؟ حرکت کرتے ہیں۔ تو میں اکثر بار بار جب بھی نفوذ کی بات ہوئی، ڈیفیوژن کی بات ہوئی، تو میں نے کہا کہ اپنی زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف وہی بات یہاں ہو رہی ہے۔ مادے زیادہ ارتکاز، یعنی اپنی زیادہ مقدار، ارتکاز کا مطلب ہوتا ہے کانسنٹریشن، ان کی زیادہ تعداد، ان کی زیادہ مقدار، تو اپنی زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی جناب وہ کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں۔ اور یہ جو نفوذ ہوتا ہے، یہ نفوذ کیسا عمل ہے؟ سست عمل ہے۔ سست کا مطلب یہاں ہے یہ بہت سلو عمل ہے۔ سست کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ سلو ہے، جو دھیرے دھیرے ہونے والا ہے، اور اس کا انحصار کسی جاندار نظام پر نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بھی انحصار کسی جاندار نظام پر نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر جیسے ہی کسی سالمے کی، کسی معدنیات کی، کسی نامیات کی
تعداد اس کا ارتکاز اگر بڑھ جائے گا تو جیسی وہ بڑھے گا تو وہ اپنے زیادہ مقدار سے کدھر جانا شروع کر دے گا؟ کم مقدار کی طرف، دھیرے دھیرے دھیرے، اور اس وقت اس کو کوئی توانائی کی ضرورت بھی پڑنے والی نہیں ہے۔ پھر گیس اور رقیق میں نفوذ بہت واضح ہے۔ اگر ہم گیس کی بات کریں گے تو گیسز بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتی ہیں؟ ڈیفیوژن کرتی ہے، پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور رقیق یعنی جو چپچپے مادے ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ نے پانی کو رکھا ہے تو پانی کبھی بھی ٹھہرے گا نہیں۔ شہد ہے، دودھ ہے، اگر دودھ گر گیا آپ کے گھر میں تو دودھ جہاں گرا تو دودھ ٹریول کرتا ہو جائے گا، دھیرے دھیرے نقل و حمل کرتا جائے گا، بہت سلو کرے گا، لیکن جب تک وہ پوری طرح سے پھیل نہیں جاتا اپنی ہائر کانسنٹریشن سے لوور کانسنٹریشن پہ، تب تک وہ پھیلتا رہے گا۔ تو اسی طرح یہ بول رہا ہے کہ وہ گیس اور رقیق میں ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ نفوذ۔ لیکن ٹھوس کے بجائے ٹھوس شے میں نفوذ زیادہ ممکن ہے۔ ٹھوس کے بجائے ٹھوس شے میں نفوذ زیادہ ممکن ہے۔ پودے کے لیے نفوذ بہت زیادہ کیا ہے؟ مفید ہے، چونکہ پودے میں گیس کی نقل و حرکت صرف یہی ایک ذریعہ ہے۔ یعنی پودوں کے اندر اگر نقل و حمل کی بات کریں تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کون ہے؟ ڈیفیوژن۔ نفوذ کی شرح، ارتکاز کی ڈھلان، انہیں علیحدہ کرنے والی جھلی کی صلاحیت پذیری، درجہ حرارت اور دباؤ، یہ سب اس کو کیا کرتے ہیں؟ متاثر کرتے ہیں۔ یعنی نفوذ کی جو شرح ہے، یعنی ریٹ آف ڈیفیوژن، ریٹ آف ڈیفیوژن یا نفوذ کی شرح کی اگر بات کریں تو نفوذ کی شرح کو متاثر کرنے والے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سے حالات ہیں؟ تو ارتکاز کی ڈھلان، کہ ارتکاز ہمیشہ ہائر سے لوور، یعنی اپنی زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف، لیکن اگر زیادہ مقدار نہ ہو تب بھی کیا ہوگا؟ جو اگر بہت زیادہ ہو تو بہت فاسٹ جائے گا، اگر بہت کم ہو، تھوڑا سا ہو، تو بہت دھیرے دھیرے جائے گا۔ پھر بیچ میں جو جھلی ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو بیچ میں کوئی جھلی ہوں گی، تو وہ جھلی اگر بہت زیادہ تھک ہے، بہت زیادہ موٹی ہے، تو سرائیات وہاں سے پاس ہونا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ پھر درجہ حرارت، اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو تب بھی نقصان ہوگا، اور اگر پریشر بہت زیادہ ہو تو پریشر اگر زیادہ ہو تو بہت زیادہ جلدی جلدی جائے گا، لیکن اگر پریشر کم ہو تو بہت سلو جائے گا۔ تو نفوذ کی جو شرح ہے، جو ریٹ آف ڈیفیوژن ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے والے، اس کو متاثر کرنے والے کون کون سے عوامل ہے، کون کون سے فیکٹر ہے؟ تو وہ ہے ارتکاز کا ڈھلان، وہ ہے جھلی کی صلاحیت پذیری، تیسرا ہے درجہ حرارت، اور چوتھا کیا ہے؟ دباؤ۔ ان کو آپ ایک جگہ لکھ کے رکھیے کہ نفوذ کی شرح کو کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کام کو نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ سارے اس میں میننگ ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے کہ روٹ کے اندر ڈیفیوژن کا عمل ہونا ہے، تو اگر زمین کے اندر پانی اتنا زیادہ ہے ہی نہیں تو روٹ کے اندر پانی آئے گا کیسے؟ یعنی اپنی ہائر کانسنٹریشن سے لوور کانسنٹریشن میں، اپنے زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز پہ جانا ہے۔ تو اگر زمین میں بہت زیادہ پانی نہیں ہوگا تو بہت زیادہ ایبزارپشن کا عمل نہیں ہوگا، یعنی بہت زیادہ نقل و حمل نہیں ہوگی۔ اگر روٹ کے پاس زیادہ پانی نہیں رہے گا تو وہ تنے کو زیادہ نہیں دے گا، تنے کے پاس زیادہ نہیں رہے گا تو وہ لیف کو نہیں دے گا۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو ڈیفیوژن یعنی نفوذ کی جو شرح ہے، جو اس کی سپیڈ ہے، کام کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ متاثر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ناؤ اب ایک جو پیسیو ڈیفیوژن ہوتا ہے، تو ایک تو میں نے بتایا نفوذ، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیوژن، جہاں پر کسی بھی مولیکیول کو ایک اپنے زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف بغیر کسی انرجی کے، بغیر کسی توانائی کے خرچ کے جانا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور پروسیس ہوتا ہے، ایک اور عمل ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فیسیلیٹڈ ڈیفیوژن، یا اس کو کہا جاتا ہے امدادی نفوذ۔ فیسیلیٹڈ ڈیفیوژن یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ امدادی نفوذ۔ عام طور پہ جب ہم فیسیلٹی کہتے ہیں، فیسیلٹی کا مدد کیا ہوتا ہے؟ فیسیلٹی کا مدد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کچھ مدد کی ہے، ہم نے آپ کے لیے کچھ آسانیاں کی ہے تاکہ آپ کا کام کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اس کو ہم بولتے ہیں فیسیلٹی۔
जैसा आपके पास अगर कोई मेहमान आने वाला है तो आप बोलते हैं कि यार हमने आपके लिए गाड़ी की फैसिलिटी की है, कार की फैसिलिटी की है। इसका मतलब ये है कि आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उस गाड़ी में बैठिए, आपको फौरी लेकर आ जाएगी। या आप किसी भी अंदाज में किसी के काम को जब अंजाम देते हैं तो आप बोलते हैं कि यार हमने आपको तो फैसिलिटी प्रोवाइड करे थे, मतलब हमने आपके लिए आसानियां किए थे। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनको लाने ले जाने के लिए कुछ फैसिलिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसा कहा कि नुफूस का मामला कैसा होता है, वो अपने हाइयर से लोअर पे जाती है। तो नुफूस की शरह जो है वो मादे के साइज पर मुनहसिर होती है। जाहिर है कि छोटे साइज के जो सालमे होंगे वो तेजी से क्या करेंगे, नुफूस करेंगे, यानी जो जितना छोटा होगा वो उतनी फास्ट भागेगा। तो वैसा ही है कि अगर नुफूस की बात करें और नुफूस में भी ढलान की मौजूदगी में अगर बात करें अपने ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ, तो अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल है तो वो बहुत जल्दी चले जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े हैं ज्यादा है तब भी उनके लिए क्या होगी, दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तेजी से नुफूज होगा किसमें होगा, छोटे साइज पे। अब बड़ो साइज वालों का क्या है, तो झिल्ली के पार किसी भी मादे के नुफूज वो किसके जरिए होगा, वो लिपिड में इसकी हल पजीरी पर मुनहसिर होता है। यानी अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम खलिए की बात कर रहे हैं, तो जब खलिए के अंदर किसी को मॉलिक्यूल को पास होना है, ये हमारा सेल है और ये सेल की क्या है, झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम कहते हैं। ये झिल्ली का नेचर क्या है, इस झिल्ली का नेचर है लिपिड। इसका जो नेचर है वो क्या है, लिपिड। उसका नेचर क्या है, चर्बी। लिपिड है यानी चर्बी। लेकिन इस चर्बी के जरिए वही मॉलिक्यूल पास होंगे जो इस चर्बी के अंदर क्या हो सकते हैं, हल पजीर। जो क्या हो सकते हैं, हल पजीर, यानी चर्बी के अंदर जो पिघल जाएगा, जो चर्बी के अंदर हल हो जाएगा, वो आसानी से इस जो झिल्ली है, इस झिल्ली के जरिए क्या कर देगा, क्रॉस कर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो इस झिल्ली के अंदर हल पजीर नहीं होंगे, तो फिर उनको उनको सेल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो फिर क्या करें, तो उनके लिए क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फैसिलिटी। यानी हर कोई चलकर नहीं आ सकता, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। हर कोई हमारे पास बिरयानी नहीं खा सकता है तो हम उसके लिए रोटी बनाते हैं। हर कोई गुलाबी जामुन नहीं खाता है, शुगर है, इसलिए उसके लिए कुछ और मीठा बनाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका उनके जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर हल पजीर नहीं हो सकते हैं। तो अब झिल्ली से डिफ्यूजन का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि उसने पहले लिपिड लेयर में जाना है, वहां पर उसने हल होना है, फिर वो आगे पास होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नुफूस का अमल है ये हल पजीरी पर मुनासिर होता है, चूंकि झिल्ली जो है वो ज्यादा हिस्सा किस पर है, लिपिड पर मुश्तमिल है, यानी चर्बी के बना है। तो जो मादे लिपिड में हल हो जाते हैं वो झिल्ली के पार नुफूस क्या कर सकते हैं, तेज रफ्तार से कर सकते हैं। ऐसे मादे जिनमें पानी से रगबत रखने वाले हिस्से, यानी इनके पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मोइटीज, जिनके पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मोइटी, वो झिल्ली में गुजरने में क्या महसूस करेंगे, दिक्कत महसूस करेंगे, वो आसानी से उस झिल्ली से पास नहीं हो सकते। यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए समझे कि पानी है और उस पानी में अगर आपने ऑयल डाल दिया तो पानी और ऑयल का तो झगड़ा है, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते। तो वैसे ही यहाँ पर ये बात हो रही है कि कुछ ऐसे मादे होते हैं जिनके पास क्या होगा, पानी से रगबत होगी, यानी पानी में वो हल पजीर है तो वो चर्बी में हल पजीर नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि उनके पास क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वर्ड इस्तेमाल होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी में हल पजीर, पानी में हल पजीर। तो जो पानी में हल पजीर होगा वो चर्बी में हल पजीर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब उसको झिल्ली से जाना है, उस मेम्ब्रेन से बाहर जाना है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार से बाहर जाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या होगी, दिक्कत होगी। तो अब ऐसे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटी देना पड़ेगा। तब वो फैसिलिटी को कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ ऐसे मादों के नुफूस के लिए मदद की जरूरत होती है। झिल्ली में मौजूद प्रोटीन ऐसी जगह क्या करते हैं, फराहम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर क्या है, ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन है
ये प्रोटीन क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इनका नेचर क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी ये पानी में हल पजीर होते हैं, इसलिए इस लिपिड की लेयर से वो पास नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए स्पेशल रास्ता बनाया गया है, एक जगह बनाई गई जिसके जरिए वो जाएंगे। और वो जो रास्ता है, वो रास्ता कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन उनको फैसिलिटी देता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, राहत देता है, राहत मुहैया करता है, आसानी देता है, इसलिए उसको कहा गया है फैसिलिटी, या हम ये कहेंगे वहां पर वो क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, इसलिए उसको कहा गया इमदादी। तो जहां से एक सालमा झिल्ली से क्या हो जाता है, गुजर जाते हैं, ऐसे साल में इर्तिकाजी ढलान नहीं कायम करते। इर्तिकाजी ढलान पहले से मौजूद होना जरूरी है, चाहे इनका नफूज प्रोटीन के जरिए ही क्यों ना हो। इसका मतलब अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, अपने ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ भी ये जाते हैं, तो इनको जरूरी है कि इनको क्या प्रोवाइड की जाए, फैसिलिटी प्रोवाइड किया, स्पेसिफिक रास्ता प्रोवाइड किया जाए, मखसूस रास्ता प्रोवाइड किया जाए। वो मखसूस रास्ता एक प्रोटीन बनाता है, इसलिए उसको कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इमदादी नफूज। ठीक है, तो जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन में दो तरह के डिफ्यूजन होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां पर किसी को कोई डाउट है? बात समझ में आई? ठीक, नाउ एक और बात कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, जो इमदादी नफूज है, और इस इमदादी नफूज के अंदर क्या होते हैं, हमने कहा कि मखसूस प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं वहां पर, मखसूस प्रोटीन। और ये मखसूस जो प्रोटीन है, ये क्या होते हैं, झिल्लियों के आर पार सालमात की हरकत में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इस अमल में इनको एटीपी की जरूरत यानी तवानाई खर्च नहीं करना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ इमदादी जो नफूज होता है वो कम इर्तिकास से ज्यादा इर्तिकास की जानिब सालमों की हरकत नहीं करता, यानी ये भी डिफ्यूजन की तरह ही काम करेगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन यानी ज्यादा इर्तिकास से कम इर्तिकास की तरफ, इसलिए इसको भी तवानाई की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जब सारे ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल होते हैं तो नक्ल व हमल की जो शरह है वो सबसे ज्यादा होती है। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जाम में इस पर सवाल किया गया था। अब सवाल किस तरह से, तो मैं इसको आगे बताता हूं, बस इतनी बात यहां पर समझने की कोशिश करिए कि जब सारे ट्रांसपोर्टर एक साथ काम कर रहे हैं, यानी आपने फॉर एग्जांपल कहीं पर कूली लगाया हुआ है, काम करने वाले या हमाल लगाए हुए हैं, वो सारे हमाल को आपने कहा कि इधर से डब्बे उठाना है और इधर रखना है, तो जब सारे के सारे हमाल एक साथ डब्बा उठाएगा तो उसमें से कोई खाली रहेगा क्या, नहीं, सबके हाथ में डब्बे रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब ट्रांसपोर्टर का सिस्टम होता है तो नकल व हमल की शरह उस वक्त क्या होगी, सबसे ज्यादा, यानी जब सबने एक साथ डब्बा उठा दिया तो डब्बा उठा के जब सब एक साथ रखेंगे तो जो काम होगा, यानी एक हमाल अगर कर रहा है और 100 हमाल अगर काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है, यानी जब सब मिलके करेंगे तो काम क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ पर उसी तरह से बात हो रही है, तो जब ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल होते हैं तो नकल व हमल की शरह क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इमदादी नफूज बहुत मखसूस होता है, इमदादी नफूज कैसा होता है, बहुत मखसूस होता है, क्योंकि वो एक साथ सब काम करते हैं तो उसकी वजह से जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ ये खलियों को इस बात की इजाजत देता है कि वो जज्ब होने वाले मादों का क्या करें, इंतखाब करें, यानी किस तरह का मादा हमको चाहिए। तो अगर हमको बहुत जल्दी मादा, मतलब हमको कोई ग्लूकोज चाहिए या हमको सोडियम चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमको जल्दी चाहिए, लेट चाहिए, जितने फास्ट अगर हमको चाहिए उतने फास्ट हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो काम होगा वो बहुत जल्दी होगा। ये मवाने का मतलब होता है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मतलब वो जो रोकने का काम करते हैं, जो स्टॉप करने का काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हसास होते हैं। यानी कोई ऐसा केमिकल होगा, वो केमिकल क्या करेगा, उस ट्रांसपोर्टर का, उस प्रोटीन के काम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा।
तो वो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं, वो किसी भी कीमियाई मादे के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हसास होते हैं। अगर वो छोटी भी क्वांटिटी में अगर उनको मिल जाए तो वो अपना काम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स की जानिबी जंजीरों से तामुल करते हैं, जानिबी जंजीर मतलब इंटरनल साइड में, तो जो भी प्रोटीन होता है, जो भी ट्रांसपोर्टर होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जानिबी साख्तें होती है। उन जानिबी साख्तों पे जाके अगर ये केमिकल बाइंड हो जाता है, ये इनहिबिटर जाके बाइंड हो जाता है, तो वो उसके काम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा। तो इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला। इनहिबिटर का सिंपल मतलब क्या है, रोकने वाला कीमियाई मादा, जो किसी भी काम को क्या कर देगा, बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा। उस तरह के कीमियाई मादे को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। जैसा हम कहते हैं ना स्टूमुलेटर, स्टूमुलेटर मतलब वो कीमियाई मादा जो स्टूमुलेट करेगा, काम को आगे बढ़ाएगा, उसी का अपोजिट कौन है, इनहिबिटर। ठीक है, नाउ ये प्रोटीन झिल्ली में साल्मों के गुजरने के लिए रास्ते, चैनल बनाते हैं। कुछ रास्ते तो हमेशा क्या होते हैं, खुले रहते हैं। जो प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन क्या करते हैं, झिल्ली के अंदर साल्मों के गुजरने के लिए क्या बना के रखते हैं, चैनल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज, इसको याद रखिए कि वो क्या बनाते हैं, चैनल्स, रास्ते बनाते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल के लिए क्या रहेंगे, हमेशा खुले रहेंगे। अब ये चैनल आपको कहाँ मजा आएगी, ये चैनल उस वक्त आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, या उस वक्त आपको लगेगा कि हाँ यार चैनल की असल अहमियत ये है, जब हम न्यूरॉन पढ़ेंगे, जब हम अज़बी निज़ाम पढ़ेंगे। अज़बी निज़ाम में कहाँ पर, वहां पर हम ये प्रोटीन, झिल्ली, ये सब बातें वहां पर भी हम रिपीट करने वाले हैं। बस अभी बात हमारी नबातात में चल रही है, उस वक्त बात हमारी हैवानात में चलेगी। ठीक है, तो बात को यहाँ समझ लीजिए कि ये जो प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, झिल्ली के साल्मों के गुजरने के लिए क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। जबकि दूसरे रास्तों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन को कंट्रोल नहीं करना है, इनको हमेशा ओपन रखना है, आ जा सकते हैं। यानी ये कोई चैनल गेट नहीं है, ये ऐसा गेट है जिसके थ्रू कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, कुछ बड़े होते हैं जो कई किस्म के साल्मों को क्या करते हैं, गुजरने की इजाजत देते हैं, जैसे पोरिन्स। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक मिसाल है, इसको आपने याद रखना है। पोरीन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है ये, पोरीन प्रोटीन। अब ये पोरीन प्रोटीन किसको बाहर जाने देगा, किसको अंदर आने देगा, इसकी बुनियाद पर इनके नाम अलग अलग है। नाउ जो पोरीन है, पोरीन प्रोटीन है, जो प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया की बैरूनी झिल्ली में बड़े बड़े सुराख बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पोरीन प्रोटीन ये कहां पर है, प्लास्टिड्स। फिर इसी तरह से कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड क्या है, इसको हम आगे देखने वाले सबक में। इसी तरह से कौन है, बैक्टीरिया। तो इनकी जो दीवार है, इनकी जो वॉल है, इसके ऊपर कौन होते हैं, बड़े बड़े सुराख होते हैं। और ये बड़े बड़े सुराख कौन बनाते हैं, पोरीन प्रोटीन। और अब सभी साल्मों को गुजरने की क्या कर देते हैं, इजाजत दे देते हैं, जिनका साइज किसी छोटे प्रोटीन के बराबर होता है। यानी छोटे छोटे प्रोटीन है, उसके हिसाब से अगर इनका साइज है तो वो उनको क्या करेंगे, अंदर आने देंगे। यानी पानी है तो पानी को अंदर आने जाने देना है, कोई और प्रोटीन है उसको अंदर आने जाने देना है। तो ये काम ये क्या करेंगे, पोरीन प्रोटीन्स करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, रास्ता मुहैया करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शक्ल जो है, ये शक्ल इसकी अगर बात करेंगे तो एक बैरूनी खलवी सालमा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से चिस्पा दिखाया गया है। एक बैरून खलवी सालमा कहां पर बताया गया है, ट्रांसपोर्ट से। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन गर्दिश करती है और सालमे को खलिए के अंदर क्या कर देती है, खारिज कर देती है। मिसाल के तौर पर आबी रास्ता जो 8 मुख्तलिफ किस्म के एक्वापोरीन से बना होता है ना। यहाँ पर मैंने वो डायग्राम ऐड नहीं किया है, इसका सिंपल इतना समझ लीजिए कि ये जो है, ये एक्वापोरीन, ये कौन है, एक्वापोरीन। एक्वापोरीन का मतलब क्या है, एक्वापोरीन मीन्स वो पोरीन प्रोटीन जो पानी के साल्मों को, वाटर के साल्मों को जाने दे। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया है कि ये ऑक्सीजन है और ये कौन है, 2 हाइड्रोजन है ना, H2O। तो ये 2 हाइड्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन है। तो इस तरह से उन्होंने ये बनाया, ये वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल को आगे जाने, इस पानी के सालमे को मेम्ब्रेन से, झिल्ली से पास होने के लिए एक
स्पेशल प्रोटीन है। अभी जो स्पेशल प्रोटीन है उसका नाम क्या है? पोरीन। चूंकि वो पानी के मॉलिक्यूल को, पानी के सालमों को अंदर जाने दे रहा है, इसलिए उसका नाम क्या बन गया? एक्वापोरीन। और ये जो एक्वापोरीन होता है, तो ये एक्वापोरीन क्या करता है? ये 8 मुख्तलिफ किस्म के एक्वापोरीन से बना होता है। 8 कितने? 8 मुख्तलिफ किस्म के एक्वापोरीन प्रोटीन से क्या होता है? बना होता है। इसका मतलब यह है कि जो चैनल होता है जो पानी के सालमों को जाने दे रहा है, वो जो चैनल है उसको 8 अलग अलग किस्म के एक्वापोरीन ने मिलकर बनाए हुए होते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा पोरीन प्रोटीन है जो पानी के सालमात को जाने देगा, तो उसका नाम क्या है? एक्वापोरीन। क्यों? क्योंकि एक्वा मतलब होता है वाटर, पानी, और दूसरा जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की वजह से, या उस प्रोटीन को पानी की वजह से नाम पड़ गया एक्वापोरीन। इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए जो पोरीन होंगे उनके नाम क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। ठीक, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नाउ अब यहां पर देखिए, जो मजहूल ट्रांसपोर्ट